ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದೆ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की जो स्पेशल ब्लॉग है ये कर्नाटका राज्योत्सव यानी कर्नाटका फाउंडेशन डे स्पेशल ब्लॉग होगा। और हम लोगों की सोसाइटी में, बेंगलोर की सोसाइटी में फर्स्ट टाइम 65th कर्नाटका राज्योत्सव मनाया गया था, बहुत ही धूमधाम से। तो इसकी ही ब्लॉग आप लोगों के लिए लाई हूँ। होप ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही एन्जॉयबल होगा। तो चलिए हम लोग ये ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग तो बहुत लंबी थी, बट मैंने कट करके जितना भी मुझसे हो सके मैंने आप लोगों को दिखाने की ट्राई किया। हम लोगों की सोसाइटी में कैसे इस बार इस कर्नाटका राज्योत्सव यानी फाउंडेशन डे कर्नाटका के मनाया गया था, तो उसकी ही ब्लॉग लाई हूँ। और फर्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगी कर्नाटका की जो स्पेशल ड्राम डांस जिसको बोला जाता है डोल्लू कुनिठा, तो उसकी ही आज एक झलक फर्स्ट दिखाऊंगी। और धीरे धीरे आप लोगों को कैसे हम लोगों की ये दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। तो कर्नाटका की फोक डांस जो है वो देख के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी ने बहुत एंजॉय किया। फिर से आप लोगों को वो डांस दिखाऊंगी, बट फर्स्ट आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोगों की क्लब हाउस को कैसे सजाया गया था, रंगोली वगैरह से कैसे सजाया गया था। और अंदर क्लब हाउस में जिसमें वो मेन इवेंट होने वाले थे वो कैसे सभी ने सजाया, वही आप लोगों को थोड़ा उसकी झलक दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए वो देख लेते हैं फर्स्ट।
तो कर्नाटका की जो फोक डांस है, ड्राम डांस, वो देख के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे भी फर्स्ट टाइम थे इस बार, और अभी टाइम है फ्लैग होस्टिंग की, और उन फ्लैग होस्टिंग के लिए स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था। तो अभी फ्लैग होस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद क्या क्या प्रोग्राम होता है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए। होस्टिंग हो गई है। अभी कर्नाटक की जो स्टेट एंथम है और इंडियन नेशनल एंथम सभी गाया गए थे, बट कॉपीराइट इशू आ जाते हैं, तो मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो नहीं सुना सकती। वही ब्लॉगर्स की प्रॉब्लम है कि कॉपीराइट की वजह से आप लोगों को मनपसंद जो भी सॉन्ग्स होता है वो सुनाना मुश्किल हो जाते हैं। ಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡೇತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಆಸವಿಗನ್ನಡ ಕನ್ನಡೆಯನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ ಕನ್ನಡೆಯನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನು ಕಾಡುವ ಕವಿಯೊಳು ತೆಕ್ಕೆನೆ ಮನಮೈ ಮರೆಯುವುದು. ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕನಸು, ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಕನ್ನಡಿಗನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಸೊಗಸು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸು ಬೆಳೆಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ ಕರುನಾಡ ಹಿರಿಮೆಯ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು, ಕಾವ್ಯಗಳ ನಾಡು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದು ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರು. A very warm and hearty welcome to this 66th Kannada Rajyotsava, which is being celebrated for the first time by the Kannada fraternity named Kannada Balaga. In this day, he is in touch with Kannada as long as he reaches the main gate. But after a few days of staying here, he finds there is no trace of Kannada here. Having sensed this lacuna, some of our enthusiastic Kannada youth conceived the idea of need to form a Kannada Balaga. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಸನ್ಮಾನ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಶಾಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಣ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ फ्लैग होस्टिंग के बाद सभी लोग क्लब हाउस के अंदर जहां मेन इवेंट होने वाले थे उधर आ गए और जो गेस्ट थे उन लोगों की फेलिसिटेशन हो गई. अभी फंक्शन होगा शुरू, तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या फंक्शन किया गया था. ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರಾ, ಬಿಟ್ಟಿರಾ, ಇಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ನಾಟಿ ನೆಟ್ಟಿರಾ? ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ನೆಂಟರ, ಇಷ್ಟರ, ಇಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರ? ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ಚಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿಯ ಎದುರು ಕಪ್ಪ ಕೇಳುವವರ ಮ್ಯಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಿರುಪರಿಚಯದ ಭಾಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪುಟಾಣಿ ಚಿನ್ಮಯ.
सोसाइटी के लेडीज़ किड्स सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया फंक्शन में। बट यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं सुना सकती। जो भी डांस हुआ था, सॉन्ग गाए थे, वो लोग नहीं सुना सकती क्योंकि वो म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आ जाते। तो आप लोगों को ऐसे ही खुद की म्यूज़िक सुना के ही आप लोगों को क्या क्या हुआ था वो इसके एक झलक दिखाना, छोटा सा झलक दिखाती हूँ। होप आप लोगों के लिए ये एन्जॉयबल होगा ये वीडियो, तो आप लोग एन्जॉय कीजिए। ಕಡಲು ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಗೆಳೆತನ, ಆಡುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಸಿರಿತನ, ಕಲಿಯುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಿಂಚನ ಮಂಚನೆ, ಓಡುತ್ತ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ ರೋಮದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚ. ಮತ್ತು 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು 8 ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅಥವಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಇವರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 1967ರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರಾಘವ ಬರಹಂಸ, ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೆಟ್ಟಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಗರಿಗೂ ನಕ್ಷರರಾಶಿ, ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೂ ಕುಸುಮರಾಶಿ, ಅಪ್ಪಗರಿಗೂ ಶೇಷರಾಶಿ, ಅಮ್ಮಗರಿಗೂ ಪೌಡರಾಶಿ. ನನಗೆ ಬೇಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಬಾಬಾ ನನಗೂ ಹಾಡಲು ಕಲಿಸು, ಬಾಬಾ ನನಗೂ ಹಾಡಲು ಕಲಿಸು. ಅಂಬರು ನೀರಿಗೆ
फंक्शन जो थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और कन्नड़ा सुपरस्टार जो थी पुनीत राजकुमार उनके ट्रिब्यूट में भी डांस किया गया था, गाना गाया था। और लास्ट में ये क्विज़ हो रहे हैं, आप लोग देखिए। और इसमें क्या है, जो भी नॉन कनाडियन है, जिन लोगों को कनाडा पता नहीं है, उन लोगों के लिए ये क्विज़ था। और कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स के नाम बोला जाता है और कनाडा में उसके मीनिंग क्या होता है, मतलब स्पेलिंग और वो बताना था। तो ये है, पीहू की मम्मी को मिल गई थी और हम लोगों को भी मिल गई थी। और थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगी शिवेंडा, यानी शिवेंडा को भी एक चॉकलेट की पैकेट एक्स्ट्रा मिल गई थी और बहुत खुश हो गई थी शिवेंडा। और बहुत मज़ा भी आया लास्ट में ऐसे क्विज़ कंपटीशन करके, क्योंकि हम लोगों को कन्नड़ा पता नहीं है, बट सीखना है हम लोगों को भी। बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है कन्नड़ा। और देखिए ये शिवेंडा कितना खुश है। और लास्ट में थी लांस, तो लांस भी एकदम लाजवाब थी, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस वेजिटेरियन फूड थी लांस में। देखिए ये क्या क्या है, आप लोगों को एक दिखा देती हूँ। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, फंक्शन एंजॉय किया, जो कर्नाटका फोक डांस है उसको एंजॉय किया, साथ में ही लास्ट में एंजॉय किया ये यम्मी यम्मी सा गर्मा गर्म लांस। तो कैसा लगा हम लोगों की ये कन्नड़ा फेस्टिवल, यानी कर्नाटका राज्योत्सव और कर्नाटका की फाउंडेशन वे भी आप लोग बोल सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत ही ग्रैंड सक्सेस हुआ, ये फर्स्ट टाइम हम लोगों की सोसाइटी में मनाया गया था, बट बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो कैसा लगा हम लोगों की ये स्पेशल ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे भी हम लोगों की ब्लॉग्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।